about the security deployment in Varanasi around here. And as you can see in our frame as well, more than 250 policemen have been deployed in the Varanasi court complex where Samarth is currently standing. The bomb disposal squad is continuously patrolling at the Varanasi district court complex. Policemen in civil dress have also been deployed. Outsiders not being allowed to stand around the court premises. Quick response teams have also been deployed. Very high security arrangements have been put in place at the district court premises and around the Varanasi Kashi Vishwanath temple as well. The administration trying to make sure that nothing untoward happens, no crowds gather so that even at the time of the verdict, nothing can go wrong. No kind of agitated crowd or any kind of statement to a crowd can be made. But Samarth, I'm coming back to you now. The district court set to pronounce its verdict around 2:30 p.m. As you were just saying a few seconds ago, that this case is going to be very crucial, that this case also has a history in the 95 case which is currently pending in Allahabad. With this kind of disputes have also come up in other areas as well. The Mathura case is there, the Delhi case is there. Petitions also being filed about other Mandir Masjid disputes across the country. So this is sort of going to be a crucible to see how this will go on further, particularly with the 1991 Places of Worship Act, whether the courts accept the bar or they accept the Hindu side's argument that if something was a temple once, then that bar of 1991 Places of Worship Act won't exist. Samarth, how do you see this entire situation? You've been covering this case here in Varanasi for a while. You've been talking to all sides. How do you see the impact, particularly among the people of this city, of the state, of today's verdict? Well, Anisha, before me, I guess we should take this to the senior advocate Nityanand Rai, who is also looking after this particular matter in the district court. Nityanand, welcome to India Today. And my first question to you is, आप कैसे इस पूरे केस को देख रहे हैं? आज एक बड़ा दिन है इनके लिए भी, हिंदू साइड के लिए भी, मुस्लिम साइड के लिए भी. आपको क्या लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है मेरे विचार से? ये जो ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष की, वो ये है कि ये मुकदमा वर्शिप एक्ट से बाहर है, लिहाजा ये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है, इसको देन एंड देयर इसको खारिज कर दिया जाए, ये मुकदमा चलने लायक नहीं है. तो दोनों पक्ष से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिला जज महोदय ने एक लंबी सुनवाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तक ये सुनवाई चली है. दर्जनों डेट पड़ी जो है और दोनों तरफ से लंबी लंबी बहस हुई है. सैकड़ों ऑनरेबल हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की नजीरें दी गई हैं. तो आप ये समझे कि आज जो आदेश आएगा ऑनरेबल जिला जज महोदय का, वो इस बिंदु पे आएगा कि ये जो राखी सिंह वगैरह 5 महिला वर्शिप हिंदू पक्ष के लोगों ने जो मुकदमा सिंगार गौरी में पूजा अर्चना के लिए जो दाखिल किया है, वो मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा. आज इसके यदि मान लीजिए हिंदू पक्ष के पक्ष में आता है, ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की खारिज हो जाएगी, तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, फिर मुकदमा आगे प्रोसीड कर जाएगा. ये है. So I have also got Abhay Nath Yadav, the Hindu side advocate with us. Abhay, very welcome to India Today TV. मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आज आप लोग के लिए एक बड़ा दिन है. आप लोग काफी दिनों से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हर हेयरिंग में रहे हैं. हेयरिंग्स अभी तक कैसे बीते हैं? आप लोगों ने क्या पक्ष रखा अभी तक और आपको क्या लगता है आज क्या होने वाला? मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता हिंदू पक्ष. आज हम आशान्वित हैं, बहुत विस्तार पूर्वक, संभवतः संपूर्ण सीपीसी के इतिहास में 7/11 पे इतनी लंबी बहस नहीं हुई होगी कभी भी, और ना ही एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पर इतना लंबा हंगामा मचा होगा. पूरे संपूर्ण इतिहास की बात बता रहे हैं. और जिस तरह हम लोगों ने बिंदु से इसका जवाब दिया, इस पे इतिहास, पुरातत्व, हमारे जो महान ग्रंथ हैं उनका आश्रय लेके, ये सारे चीज और पूर्व के न्यायालयों के निर्णय सबको कंक्लूड करके, इकट्ठा करके समन्वित ढंग से इसका हमने अपील की है. यह दुर्लभ मुकदमा है जिसपे हमें सफलता मिलनी है और तय है. वर्शिप एक्ट की बार बार लोग बात कर रहे हैं, एक्ट और वक्फ वाला पॉइंट, वो दोनों वक्फ एक्ट यहाँ लागू ही नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी ने कभी भी वक्फ नहीं की है. औरंगजेब के समय वक्फ बोर्ड था ही नहीं, तो वो करेगा क्या? और किसने वक्फ का जो कानून है उसके अनुसार कि वक्फ प्रॉपर्टी करने के लिए कोई होना चाहिए, दान देता, दान ग्रहीता, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं बनता है.
तो ये बात यहाँ पे निराधार सिद्ध होती है। और जहाँ तक वर्शिप एक्ट की है, हमारे रिचुअल्स अनंत काल से यहाँ आरंभ है, पूजा निरंतर होती रही है, कभी भी नहीं रुकी है, केवल स्ट्रक्चर बलात् बदल देने। और ये जो रिपोर्ट गई है उसमें जिक्र उस शिवलिंग का भी है जिसको आप लोग कह रहे हैं शिवलिंग है, वो लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है। आपको क्या लगता है कि आज जज उसके बारे में अभी कुछ बता सकते हैं? नहीं, अभी तो पूरी तरह फोकस्ड 7-11 है और 7-11 पे माननीय न्यायालय पोषणीयता पर ही अपना ऑर्डर करेंगे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ पे सस्टेन किया जाए या खारिज किया जाएगा। और हम आशान्वित हैं कि ये चलेगा, क्योंकि हमें इसी विश्वास से हम न्यायालय के शरण मदन जी, अगर इन केस 1% भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पर अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? निसंदेह हमारे लिए भी उच्च न्यायालयों के दरवाजे खुले हुए हैं और हम उस चौखट पे भी जाएंगे। चूंकि ये मामला सामान्य नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, देश को धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी लड़ाई है, पूरे नैरेटिव की है, ऐतिहासिक लड़ाई है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं भाई। उन्होंने बोला फव्वारा है, आपने कहा शिवलिंग है, काउंटर हियरिंग्स में कैसे किया अभी तक आप? हमने अभी शास्त्रों का अध्ययन किया, उसका उद्धरण दिया है और हमने बताया कि किस तरह ये शिवलिंग प्रतिष्ठित रहे और स्थापित रहा है, इसलिए वो इस पे फव्वारा कह देने मात्र से, क्योंकि वो फव्वारा है, उसको सिद्ध नहीं कर सके और ये सिद्ध हो चुका है कि वो शिवलिंग है। कार्बन कोटिंग ASI, निसंदेह अब अगला चरण उसी का है। कार्बन कोटिंग चाहता है हिंदू पक्ष? हाँ, हम तो उसके कार्बन डेटिंग हो जाए और उसका पूरा तात्विक परीक्षण हो जाए। कार्बन डेटिंग के पक्ष में मुस्लिम पक्ष है कि नहीं है? जी मुस्लिम पक्ष चाहता है कार्बन डेटिंग हो कि ना हो? नहीं, वो तो भाग रहे हैं, वो तो निरंतर भाग रहे हैं। यहाँ तो एक मुकदमा 1991 से चल रहा है, उसमें भी लगातार भाग रहे हैं, स्टे करा रहे हैं और ढेर सारे कानूनी बाधाओं का उल्लेख करते हुए उसमें अड़चन पैदा कर रहे थे। मेरा आपसे आखिरी सवाल मदन जी, कितने बजे तक हम माने कि ऑर्डर जो है माननीय न्यायालय, हम लोग आशान्वित हैं कि 2 बजे के बाद ही निर्णय देंगे, 2 से 4 के बीच में आ जाएगा। So Anisha, as you just heard that he was Madan Yadav, the Hindu side advocate, he clearly told us that what are the things necessary put in by the Hindu side while the decisions taken by the court will take place around 2 p.m. today. So that's the time, as he just said, they are expecting something around happening, be it at 2 or after 2. So we have to wait for that. But that was the exclusive. The Madan Yadav, the Hindu side advocate with India Today TV, and he clearly spoke on the major things of this particular case.